Hello students, I RN Singh welcome you to the fourth part of the topics relation and function. Here we discuss about the types of the functions. The types are number one, identity function, constant function, modulus function, signum function, greatest integer function, and partial fractional functions. All these functions are real valued functions. Real valued functions means what? If the domain of the function is the real number, that is R, then the functions are called as real valued function. So, if f is a function from R to R, is called as the identity function if it is defined as इस सभी फंक्शन के लिए आप ये लैंग्वेज को यूज करेंगे दैट इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन. यहाँ लिखोगे इसके बाद लिखोगे इफ इट इज डिफाइंड एज. जैसे modulus your identity function is fx is equal to x. This is the identity function. If fx is equal to c is constant, then this function is called constant function. If fx is equal to mod x, then this mod x is called as the modulus function. If fx is mod x by x, this function is called as signum or sine function. अगर इस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, तो उस फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे. और अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग रखते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन. इसके अलावा हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग डिस्कशन कर ले. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो इसको हम लोग आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? आई शुड टेक द वैल्यू ऑफ एक्स 1 2 3 ऐसे अगर रखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में जो एफ में जो एलिमेंट मिलेगा दैट इज 1 1 2 2 3 3. इस तरह से ये एलिमेंट आपको मिलेगा n के जगह n. जैसे यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा. So since the value of x and the value of I are identical, so this function is called your identity function. Similarly, for the constant function, if fx is equal to c, that is called your constant function. अगर आप यहाँ पर इसको c लिख दोगे तो for each and every value of x, you will be getting the value of y as c. So that's why this is called as your what? Constant function. So constant function और identity function का जो ग्राफ होगा, what should be the graph? How is the graph of the function? So this graph is your जैसे ये straight line जाएगा, this one, this is 0 0, this is 1 1, this is 2 2. So this graph, that is y is equal to x. This is the graph of identity function. Now y is your fx. So what is the domain? The all value of x of this function is the domain, and the all value of y is the range of the function. So what is the domain? Domain is your R, and what is the range? Range is your R. So this is about your what? Identity function. For the constant function, since all value of x, that is 1 2 3 4 5 or up to n, हर x का वैल्यू के लिए जो y का वैल्यू है that is c. So if the value of y is your c, then this line is the parallel line with respect to the x-axis. This line is called as y is equal to c. So this is called constant function. That is for all value of x, the value of y is same, that is c. So what is the domain? इसका domain all value of x, that is R. What is the value of y here? That is only c. So this is the range of this function.
Now let us discuss about the modulus function. What is a modulus function? मॉडुलस फंक्शन को हम लोग fx इजिकल टू मॉड एक्स के रूप में लिखते हैं, और मॉड एक्स एक्चुअली क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर. देखिए रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर ये नेगेटिव हो गया तो उसको हम लोग रियल नंबर नहीं कहते हैं. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ सो वी राइट हियर योर एक्स स्क्वायर. कहने का मतलब है कि अगर आप माइनस एक्स का स्क्वायर लिखोगे या प्लस एक्स का स्क्वायर लिखोगे, दोनों का वैल्यू जो है वो एक्स होगा. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन. हेंस फ्रॉम दिस यू कैन राइट व्हाट द मॉड एक्स, द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज योर व्हाट एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, 0 if x is negative, and minus x if x is 0 if x is equal to 0, minus x if x is your नेगेटिव. इसका मतलब है जैसे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर -2, सो दिस इज नेगेटिव. तो नेगेटिव होने से इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए. तो -x का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस ऑफ -2, दिस इज 2. और अगर यहाँ पर सिंपल 2 हो गया, सो दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव केस में इसका क्या वैल्यू आना चाहिए, दिस इज x. तो इसका मतलब हो गया मॉड -2 mod 2, this is always 2. So the function modulus function represent always as a positive value, positive number of x for any value of x. That is for any value of x, the value of y is always positive. So what should be the graph? Graph is yours, this one. This is the graph of the function. That is when x is positive, the value of this is the graph. This is y is equal to x, y is equal to x. If x is negative, अगर x negative होगा, the y is equal to minus x. This is y is equal to minus x. If x is 0, the value of y is 0. So what is the domain? इसका domain क्या होगा? Domain, the value of x is carrying from minus infinite to plus infinite. So domain is R. Now that is real number. What should be the range from 0 to infinite? These are the range of the function. So what is the range? Range your यहाँ क्लोज इंटरवल होगा और यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा. क्लोज इंटरवल का मतलब है ये 0 को कैरी कर रहा है. Now let us discuss about the signum function. Signum function means what? That is fx is equal to mod x by x. Fx is equal to mod x by x. Now you know that what is the mod x? That is x. If what x is positive, अगर इसको आप x से डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा. 0 को x से डिवाइड करोगे तो 0 होगा. If x is what 0, minus x को x से डिवाइड करोगे तो -1 होगा. If x is negative, so the value of this one is either 1, 0 or -1. तो कहने का मतलब है this is your 1, 0, -1 if x is negative, if x is 0, if x is यहाँ पर पॉजिटिव होगा, this is negative. So this is the actual definition of the signum function. So what should be the graph of this function? ग्राफ क्या है इसको फंक्शन का होगा, this is the graph. If x is positive, the value of y is 1. So this is 1. For each and every value of x which are positive, the value of y is only 1. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y is equal to 1. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये ग्राफ आप अपने आप सीख लीजिएगा. When x is negative, the value of mod x by x is your -1. So this is the graph. This line is y is equal to -1. So what should be the domain? इसका domain क्या होगा? The all value of x, that is R. And what should be the range? इसका range कितना होगा? Range होगा इसका -1, 0 और 1, because it is carrying only 3 elements in y axis. So this is your -1, 0 and 1. This is about your what?
सिग्नम फंक्शन, इसको हम लोग साइन फंक्शन भी कहते हैं। वो हम लोग स्टडी करेंगे जब आप जेईई क्लास को अटेंड करोगे। ये सारे फंक्शन हम लोग फिर से अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आप क्लास 11 का सब चीज पढ़ रहे हैं। क्लास 11 में जो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर चीज में, हर फंक्शन के लिए पूछा जा सकता है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इसको जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई रियल लाइन लिए, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। So this is a real line and you know that there exist infinitely many real numbers lies in between two integers. There exist infinitely many real numbers in between two integers. बहुत सारे यहाँ पर रियल नंबर आपको मिल जाएंगे दो इंटीजर के बीच में। मान लीजिए हम इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है। जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया और 1 तक गया, तो हो सकता है यहाँ पर 0.1 हो, यहाँ हो सकता है 0.2 हो, इसका यहाँ पर हो सकता है 0.3 हो, और इसके बीच में और भी नंबर हो सकता है 0.2003 हो। लाइक दैट यू विल फाइंड इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। सो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट। जैसे अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इधर इंटीजर कह रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो दिस इज द इंटीजर। सो इधर अगर आओगे तो यू विल लुक मेनी इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस 0। सो यहाँ इस इंटीजर में -2, -1 या -3, ये जितने भी इंटीजर है यहाँ तक में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हो गया क्या 0। और अगर उधर से आओगे तो 3, 2, इधर मान लो 4, ऐसे आओगे तो सबसे छोटा जो इंटीजर होगा दैट इज योर 1। इसका मतलब है 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, 0.2 या आप लिखेंगे 0.002, सारे वैल्यू जो होंगे क्या होंगे 0 होंगे। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दीज नंबर्स। उसका कंसेप्ट क्या है कि इसके बाएं तरफ बहुत सा इंटीजर है और इसके इधर जितना भी जाओगे इंटीजर्स में 0 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर इसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन करना चाहोगे तो 0.1, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड एज fx इज इक्वल टू दिस। दिस इज योर लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर लिखोगे क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, ये सारे का लिस्ट इंटीजर फंक्शन होगा कितना 1, दैट इज द 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 2 to 3, दिस इज 2, दिस इज 3। इसी तरह से इधर आओगे, दिस इज -1, दिस इज -2। So from 0 to 1 the value of y is 0. From 1 to 2 the value of y is 1. From 2 to 3 the value of y is 2. From -1 to 0 the value of y is -1. From -2 to 1 the value of y is -2. So this is also called as step function. इसका जो ग्राफ है वो सीढ़ी जैसा है। इस ग्राफ जो हुआ दिस इज fx इज इक्वल टू ये, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन एक कड़ी ऊपर चला जाएगा ऐसे, लाइक दिस वन। क्यों, यहां से 0 से 1 तक के लिए जो
लिस्ट इंटीजर होगा दैट इज 1, और 1 से 2 तक में जो लिस्ट इंटीजर होगा दैट इज 2, 2 से 3 तक में जो लिस्ट इंटीजर होगा दैट इज 3, और -1 से 0 तक में 0, -2 से -1 तक में -1. This is the graph of least integer function. Fx is equal to this. This one is a least integer function. तो दोनों का जो डोमेन होगा वो R होगा, और दोनों का जो रेंज होगा that is what? Only integers. This is the integers. This is the integers are the domain, are the what? Range of the function. Now let us see the partial fractional function. This is called your partial fractional function. So what should be the definition of partial fractional function? ये partial fractional function का definition हम किस तरह से लिखते हैं? So this is your x minus greatest integer function. This is the definition of your partial fraction. जैसे मान लीजिए हम f1 लेना चाहते हैं, तो 1 minus 1, this is 1 minus 1, this is 0. मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं 1.2, this is 1.2 minus 1.2, this is 1.2 minus 1, इसका वैल्यू 1 ही होगा, तो 0.2. इस तरह से जैसे आप 2 में जाइएगा तो 2 minus 2, so this is your 2 minus 2, this is 0. So इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ का मैक्सिमम जो पॉइंट होता है that is 1, मिनिमम पॉइंट होगा 0. ये जैसे 0 से 1 तक जाएगा ये इंक्रीज करेगा इस तरह से, इसके बाद ये डाउन होगा, फिर जैसे आप 2 तक जाइएगा, जैसे यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये ग्राफ अपने आप जाएगा. जैसे यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते हैं f 1.5, तो 1.5 लिखने का मतलब है यहाँ पर फिर 1.5 दोगे तो दिस इज 1.5 माइनस 1, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा. सो दिस इज योर 1.5, सॉरी 0.5. तो देखिए जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा इसे, और जैसे 2 पे आया फिर वो अपने जगह पे आ जाएगा. सो ये ऐसे जा रहा है इस तरह से. दिस इज द ग्राफ ऑफ द व्हाट? ग्रेटेस्ट सॉरी पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन. सो व्हाट इज द डोमेन? इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन R होगा, और रेंज क्या होगा? दिस इज 0 to 1. दिस इज द रेंज. सो रेंज कितना होगा इसका? इसका रेंज होगा 0 to 1. यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा. सो दिस इज द रेंज ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन. चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन. सो राइट डाउन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन. तो इसका हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे. जितना भी आप फंक्शन है हम लोग पढ़ रहे हैं, हम हर फंक्शन का अलग अलग से क्लास करेंगे, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से डिवाइड होगा. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से. दिस इज ऑल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज ऑल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन. और यहाँ पर जो a है दिस इज आइदर ग्रेटर देन 1 और a lies between 0 to 1. So either the value of a is greater than 1 or the value of a lies between 0 to 1. This is called your exponential function. और अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख लें, बेस में a डालेंगे यहाँ पर log बेस ax, तो इसमें भी 2 कंडीशन होगा. ये जो a है आइदर ग्रेटर देन 1 होगा और द वैल्यू ऑफ a लाइज बिटवीन 0 to 1. बाद में हम डिस्कशन करेंगे लॉगरिथम का. जब स्पेशल चैप्टर चलेगा तब लॉगरिथम का अलग से क्लास होगा. तो यहाँ फिलहाल आप ये जानिए कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और इसको लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से जाएगा
कब? जब a ग्रेटर देन 1 होगा और ये पास होगा 0 1 से। और अगर ग्राफ ऐसे मिल रहा है, इसका मतलब ये भी पास होगा 0 1 से, लेकिन यहाँ जो a का वैल्यू होगा दैट इज a lies between 0 to 1. This is the graph of fx is equal to a to the power x. So what should be the domain? Domain is R, दोनों का डोमेन R हो गया, डोमेन हो गया R। और व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट तक। इसमें बच्चों ध्यान देना कि ये लाइन जो है इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 इसके डोमेन में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ ओपन कर देंगे। मॉडुलस फंक्शन में हम लोग यहाँ पर क्लोज किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? जस्ट इसका इनवर्स होगा। मतलब इसका ग्राफ जो होगा, इसको ऐसे टर्न अप कर दीजिए तो ये ग्राफ इसका मिल जाएगा ऐसे। तो ये पास होगा 1 0 से। ये कब होगा? जब a ग्रेटर देन 1 नॉट 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। इसको अगर ऐसे टर्न करेंगे ये ग्राफ ऐसे होगा। ये भी तुम्हारा 1 0 से पास करेगा। और ये कब होगा? जब a लाइज बिटवीन 0 to 1। सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। जैसे ये हो गया आपका fx इज इक्वल टू लॉग बेस ax, और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन जो होगा दिस इज द डोमेन दैट इज 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। इसका रेंज क्या हो गया? रेंज इसका हो जाएगा व्हाट? ऑल आर। जब डोमेन एक्सचेंज हो जाता है दो फंक्शन के बीच में तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे इसका डोमेन आर है तो इसका रेंज आर हो गया, इसका रेंज 0 to इनफाइनाइट है तो इसका डोमेन 0 to, माने ये एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। सो बोथ आर द इनवर्स टू द फंक्शन। सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द class 11, that is we have discussed already the type of the functions. One more part I will develop, that will be the question and answer patterns of the topics, that is relation and function of class 11. So dear students, next part will carry the question only, and from part 6 we will start the syllabus of class 12. तब तक के लिए धन्यवाद।